محترم ناظرین السلام علیکم، عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی ہر حالت میں مدد کیا کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ایک شخص نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہونے کی حالت میں تو اس کی مدد کروں گا، یہ بتائیے کہ ظالم ہونے کی صورت میں اس کی کیسے مدد کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو، کیونکہ ظالم کو ظلم سے روکنا ہی اس کی مدد ہے۔ تفصیل سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ مسلمان کو خیرات نہیں حق دیا جائے، کانگریس اقلیتی قائدین کا بیان۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ 12% تحفظات کا کیا ہوا؟ سرکاری افطار پارٹی اور خیراتی کپڑے نہیں، تحفظات چاہیے، اقلیتی کانگریس قائدین کا بیان۔ ضلع کمشنریٹ کی حدود میں پولیس کی کارکردگی کو مزید مؤثر بنایا جائے، زیر التوا کیسوں کی جلد یکسوئی کی جائے، جرائم کی روک تھام کے اقدامات لازمی ہیں، کمشنر پولیس کی نگرانی میں جائزہ اجلاس۔ عالمی یوم میمن کے موقع پر نظام آباد میمن جماعت کی جانب سے غریبوں میں کھانے کی تقسیم۔ میمن قائدین نے بتایا کہ آج کے ہی دن عالمی سطح پر میمن فیڈریشن کا قیام عمل میں لایا گیا تھا۔ عوامی شعور بیداری کے لیے CPIM کی جانب سے 14 تا 18 اپریل گھر گھر شعور بیداری مہم، عوامی مسائل پر آواز اٹھائی جائے گی اور عوام میں احتجاج کا شعور بیدار کیا جائے گا، CPM قائدین کا بیان۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مسلمانوں کو بھیک نہیں، انصاف و حق چاہیے، ریاستی حکومت کی مسلم طبقے کے لیے چلائی جانے والی تمام اسکیمات خیرات کی ہے۔ حکومت ایسی کسی اسکیم پر عمل آوری نہیں کرتی جس سے مسلم طبقے کا وقار بلند ہو۔ کانگریس قائدین کا سخت رویہ، مسلمانوں سے سرکاری افطار پارٹیوں کے بائیکاٹ کی اپیل۔ کانگریس کے ملک کی شہرت رکھنے والے مسلم قائد و سابق ریاستی وزیر محمد علی شبیر نے اپنے حالیہ صحافتی بیان میں ریاستی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اب افطار و خیرات کی سیاست کو ختم کر دے اور مسلم طبقے کے لیے کوئی ٹھوس کام کرے۔ محمد علی شبیر نے سوال اٹھایا کہ آخر 12% تحفظات مسلم طبقے کو کب فراہم کیے جائیں گے، جبکہ TRS حکومت کے 8 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں۔ ریاستی حکومت 12% تحفظات دینا تو دور بلکہ 4% مسلم تحفظات کو بھی لیت و لال کا شکار بنا رہی ہے اور ان 4% تحفظات کی بقا بھی اب غیر یقینی نظر آ رہی ہے۔ محمد علی شبیر نے بتایا کہ کانگریس نے مسلمانوں کی معاشی بدحالی کو محسوس کیا اور سابقہ انجہانی وزیر اعلیٰ YS راجشیکھر ریڈی نے ان کی نمائندگی پر 4% مسلم تحفظات کو لاگو کیا، جس سے ریاست آندھرا پردیش کے 20,000 سے زائد طلبہ کو فائدہ حاصل ہوا اور آج کئی مسلم بچے ڈاکٹرز اور انجینئرز بن کر اپنے خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اس ٹھوس و حقیقی فائدے کو بھی اب حکومت کی پالیسی سے قطرہ لاحق ہو رہا ہے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ مسلمانوں کے لیے ریاستی حکومت ٹھوس اسکیمات پر عمل آوری کرے، افطار پارٹی یا دوسری سطحی شعبہ بازیوں سے مسلمانوں کو خوش کرنے کی پالیسی کو ترک کر دے اور فی الفور 12% مسلم تحفظات کا اعلان کرے۔ ایجوکیشن سے دور رکھنا چاہ رہے، ان کی فیس نہیں دے رہے، ٹیوشن فیس نہیں دے رہے، اوورسیز اسکالرشپ فیس ان کو نہیں دے رہے ہیں، تو انٹینشنلی یہ صاف دکھ رہا کہ آپ ان کو ایجوکیشنلی ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو کانگریس پارٹی 70 سال سے جو ناانصافی کو دیکھ کر یہ سمجھی کہ بھئی ان کو بھی ایکول اپارچونٹی ملنا چاہیے ایجوکیشن میں، تو وہ ریزرویشن دی، فیس دی، ٹیوشن فیس دی، کالج ایکسٹرا کھولے، جس کی وجہ سے 20,000 اسٹوڈنٹ آج آپ کے ڈاکٹر انجینئر بنے۔ تو اس لیے آج میں تھرو میڈیا آل مسلم اسکالر سے، انٹلیکچوئل سے، علماء سے اور ہمارے بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے کہ کسان جو مودی جی کے 3 بل کے اگینسٹ میں 1 سال لڑا، ہریانہ بارڈر پہ، UP بارڈر پہ، دلی بارڈر پر لڑ کر انہوں نے 11 میٹنگ اٹینڈ کری، 11 میٹنگ میں سرکار کا پانی نہیں پیا، سرکار کا کھانا نہیں کھایا، سرکار کی چائے نہیں پی۔ کیا ہم لوگ KCR کو بولیں گے تمہارا جو اینٹی مسلم کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس کے بدلے میں ہم اب آپ کے اپوزٹ میں، اس کے اگینسٹ میں
हम आपका इफ्तार पार्टी और गवर्नमेंट के तमाम इफ्तार पार्टी को हम बैकआउट करेंगे। मोहम्मद अली शब्बीर साबिक़ा रियासती वजीर की तायद व हिमायत करते हुए निज़ामाबाद के मुस्लिम कांग्रेसी कायदीन ने भी सरकारी इफ्तार पार्टी की मुखालिफत की और कहा कि सरकारी खजाने पर बोझ आयद करके की जाने वाली इफ्तार पार्टियों से मुसलमानों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कांग्रेस के जवाज़ाल अक़लियती कायदीन मोहम्मद ज़िया अहमद, मोइन यूनुस, अयूब खान ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि अब सियासी शोबेदाबाजियों की ज़रूरत नहीं, सरकारी इफ्तार पार्टियों, खैराती साड़ियों और खैराती स्कीमात से मुसलमानों के जज्बात व एहसासात को मजरू करने की बजाय ठोस व फ़ायदेमंद स्कीमात पर अमल आवारी की जाए। ज़िया अहमद और मोइन यूनुस ने कहा कि रियासती हुकूमत मुस्लिम तबके के लिए जितनी स्कीमात पर अमल आवारी कर रही है वो तमाम की तमाम खैराती या इमदादी ज़मरे में ही आती है। हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के मफाद में कोई ऐसी ठोस स्कीम मौजूद नहीं है जो मुसलमानों के वक़ार को बहाल रखे और इनकी अना पर ज़र्ब ना लगाए। सरकारी इफ्तार पार्टी, खैराती कपड़े, शादी मुबारक, रियायती चावल, आसरा पेंशन के अलावा कौन सी ऐसी स्कीम है जो मुसलमानों के वक़ार को बुलंद करती है? हुकूमत के पास कोई स्कीम नहीं है जिससे मुस्लिम तबके को बाइज्जत कारोबार की सहूलत मिले। मुसलमानों को तालीम से महरूम करने तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म कर दिया, उर्दू तालीम से महरूम करने अक़ामती स्कूल खोले जिनका कोई मुस्तक़बिल नहीं। ड्राइवर्स कम ऑनर स्कीम के तहत कारें दी ताकि मुसलमान ड्राइवर और दीगर सतही काम ही करते रहे और तरक्की ना करे। इन कायदीन ने कहा कि अब मुस्लिम तबके को इन शोबिदाबाजियों से चौकन्ना होना पड़ेगा और अपने जायज़ हुकूक़ व इंसाफ के लिए हुकूमत की आंखों में आंखें डालना होगा। मुल्क के किसानों ने 1 साल तक एहतजाज करके मुल्क की हुकूमत को झुकने पर मजबूर कर दिया, तो क्या रियासत का मुसलमान अपने जायज़ व जमहूरी हुकूक और इंसाफ के लिए तवील जदोजहद नहीं कर सकता? लिहाजा 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए ठोस व तवील जदोजहद का आगाज़ लाजमी है और सरकारी अवामी ख़जाने से की जाने वाली इफ्तार पार्टियों का बाइकाट भी लाजमी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, 2014 के बाद तेलंगाना में जो TRS गवर्नमेंट फॉर्म हुई, जब से लेके आज तक सिर्फ मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन के नाम पे जो है सो धोखा दिया जा रहा है। पिछली गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, 2004 में 10,450 नशिस्तों पे MBBS की कामयाबी को BCE के तहत अमल में लाया गया कि निज़ामाबाद में बिलखुसूस माइनॉरिटी एरिया में KCR गवर्नमेंट को ये गौर करना चाहिए, KTR साहब को ये गौर करना चाहिए कि सारे बैंकों को ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया गया है सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी एरिया के लिए। माइनॉरिटी एरिया वाला अगर कोई बैंक को लोन को गया तो ब्लॉक लिस्ट में रहते। तो मेरा KCR साहब से ये सवाल है कि सौतेला सुलूक मुसलमानों से ही क्यों? उर्दू के नाम पे जो है सो आप वोट लेते और उर्दू के नाम पे आगे आते आप और माइनॉरिटी हमारा वोट बैंक है बोलते, लेकिन आज जो है सो पूरे मुसलमानों को पीछे छोड़ दे रहे। आज जो इफ्तार पार्टी की जा रही है KCR गवर्नमेंट की तरफ से, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के खजाने से कर रहे। आपको गवर्नमेंट के खजाने का जवाब देना है, हिसाब देना है। हाल ही में आप डेवलपमेंट के नाम पर इलेक्ट्रिसिटी बिल से चार्जेस ले रहे, इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ा दिए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अरेस्ट बढ़ा दिए। ये खजाना कहाँ जा रहा है? ये आवाम आपको आने वाले इलेक्शन में 2023 में ज़रूर पूछेगी। लिहाजा मेरी आवाम से गुजारिश है कि ये पैकेजेस जो इफ्तार पार्टी के नाम पे पैकेजेस दिए जाते हैं, ये साड़ियाँ दिए जाते हैं, चावल दिए जाते हैं, इसका बाइकाट करो। हमको इफ्तार पार्टी नहीं चाहिए। आज कांग्रेस जमात सारी आवाम से अपील कर रही, सारी आवाम मुसलमान आवाम से अपील कर रही, और जो मेरे भाई लोग TRS में मौजूद है, अखिलती डिपार्टमेंट के हैं, उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई आपको हमारी कौम का कुछ दर्द है तो इस इफ्तार पार्टी का बाइकाट करो। ये इफ्तार पार्टी में मत जाओ, ये इफ्तार पार्टी को बाइकाट करो, इफ्तार पार्टी को बंद करो। हुकूमत का खजाना सारी आवाम के लिए इस्तेमाल करो और माइनॉरिटी के लिए आपका जो वादा था PG to KG फ्री करेंगे, आप KG में भी सही हमारा वारी नहीं कर रहे और PG को तो भूल गए आप। लिहाजा मैं आखिरी बात बताता हूँ, आवाम से मेरी बिलखुसूस गुजारिश है कि माइनॉरिटी आवाम से कि इफ्तार पार्टी में न जाए और ये साड़ियाँ वगैरह ना ले और ये पैकेजेस ना ले। आज बड़े अफसोस से ये बात कहना पड़ रही है कि 8 साल से जनाब KCR साहब मुसलमानों को कोनी पे भूड़ लगा के चाटो बोल के छोड़ दे रहे हैं। मसला क्या है? हर साल को साल बस एक मुसलमान दिख जा रहे। क्या रमज़ान आते साथ ही खजूर खिलेंगे, बेवकूफ़ बना देंगे, भगा देंगे। तो मैं हिंदुस्तान तेलंगाना और निज़ामाबाद के अवाम से
यूथ कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक अपील कर रहा हूँ कि इनकी इफ्तार पार्टी को बैन करो, इनकी वो खैराती साड़ियों को बैन करो। हमारे को इफ्तार पार्टी नहीं होना, हमारे को ये साड़ियाँ नहीं होना, हमारे को होना 12% रिजर्वेशन, हमारे को होना एजुकेशन, हमारे को होना माइनॉरिटी लोन्स। जब तक ये नहीं देंगे और जितने आप वादे करें वो वादे पूरे नहीं करेंगे, मैं निज़ामाबाद की बिलखुसूस आवाम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि हम इनको बैन करेंगे तो इनको सबक सिखाएंगे तो आने वाले मुस्तकबिल में इन्हों हमारी बात सुनेंगे। मैं एक रिक्वेस्ट है निज़ामाबाद के आवाम से कि इनको बैन करो। पुलिस के रोल को मौसर बनाने की जरूरत, अवाम का एतमाद लाजमी, लिहाजा पुलिस ओहदेदार मुकदमात की बर वक्त तेज रफ्तार XP पर तवज्जो मरकूज करे, गैर समाजी अनासिर पर नजर रखी जाए, जुर्म के बाद सजा दिलाने की बजाय जुर्म को रोकने की हिकमत अमली इख्तियार की जाए। CP का बयान। जिला कमिश्नरेट के मिनी इजलास हॉल में महकमे पुलिस का एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी निगरानी कमिश्नर पुलिस KR नागराजू ने की। इस अहम जायजा इजलास में बोधन, निजामाबाद और आर्मू डिवीजन के तमाम पुलिस ओहदेदार शरीक थे। इस इजलास में जिन उमूर पर तवज्जो मरकूज की गई वो ये थी कि ज़िले के तमाम पुलिस स्टेशनों में ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तेज़ रफ्तार तहकीक़ात को यकीनी बनाया जाएगा और जल्द अज जल्द इसकी यकसुई करते हुए अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। दूसरा, छोटे जराइम की रोकथाम और इनके तनाज़ात की यकसुई के निज़ाम को मौसर बनाया जाएगा और तमाम पुलिस स्टेशनों में निगरानी का नज़्म मज़ीद मजबूत किया जाएगा। तीसरा, तमाम पुलिस स्टेशनों की हदूद में पुलिस तलाया गर्दी में शिद्दत लाई जाएगी और हसास मकामात पर पुलिस पैकेट्स कायम किए जाएंगे और रात के वक्त निगरानी के निज़ाम को सख्त करते हुए चोरियों की रोकथाम की जाएगी। चौथा, सबसे अहम काम ये किया जाएगा कि हादसात की रोकथाम के लिए पुलिस सख्त रवैया इख्तियार करेगी और ऑटोस, जीपों और दीगर छोटी मुसाफिर बरदार गाड़ियों में गुंजाइश से ज़ायद मुसाफिर बिठाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और तेज़ रफ्तारी, नशे में ड्राइविंग और ड्राइविंग के वक्त मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। पाँचवीं, ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी ठोस इक़दाम किए जाएंगे। छठवें, अवामी मकामात पर खुलेआम शराब नोशी पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सातवें, क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग की जिम्मेदारी है कि वो तमाम पुलिस स्टेशनों में दर्ज मुकदमात में पुलिस का ताउन करे और बर वक्त मदद फराहम करे। इसके अलावा जराइम पर सजा देने के बजाय जराइम को रोकने की पुलिस हिकमत अमली तैयार करे और अवाम में पुलिस का एतमाद बहाल करे। गैर समाजी अनासिर पर गहरी नजर रखी जाए और इसके लिए खुसूसी टीमों की तश्कील अमल में लाई जाए। कमिश्नर पुलिस KR नागराजू ने तमाम पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अपने फ़राइज़ को पूरी मुस्तैदी के साथ अदा करे और किसी किस्म की भी लापरवाही या गफलत या जानिबदारी का क़तई मुजाहरा न करे। आलमी यौम मेमन के मौके पर निज़ामाबाद मेमन जमात की जानिब से गरीब अफराद में खाने की तकसीम, 1100 पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। मेमन कायदीन ने बताया कि कई साल कबल 11 अप्रैल को मेमन फेडरेशन की तश्कील अमल में लाई गई थी और मेमन तबके को मुत्तहिद किया गया था। इस दिन आलमी यौम मेमन मनाया जाता है। मेमन जमात निज़ामाबाद की जानिब से आलमी मेमन का एहतमाम किया गया और गरीब अफराद में खाने के पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम की क़यादत मोहम्मद हारिस जिंदानी, मोहम्मद अशवर अकबानी और मोहम्मद यासिर थरादिया ने की। उन्होंने बताया कि कई साल कबल 11 अप्रैल को आलमी सतह पर मेमन फेडरेशन का क़याम अमल में लाया गया था और पूरे आलमी सतह पर ऐसा निज़ाम कायम किया गया जिससे दुनिया के तमाम खित्तों में बसने वाले मेमन एक दूसरे से जुड़ चुके हैं और इनमें अब तक ठोस तालमेल पाया जाता है। लिहाजा पूरी दुनिया में इस दिन को यादगार बनाने के लिए 11 अप्रैल को आलमी यौम मेमन का एहतमाम किया जाता है और गरीबों में खाने की तकसीम अमल में लाई जाती है। आज 1100 अफराद में खाने के पैकेट्स तकसीम किए गए। अशरफ अकबानी ने बताया कि मेमन तबके की जानिब से बेशुमार फलाही काम अंजाम दिए जाते हैं और आगे भी इन खिदमात को जारी रखा जाएगा। इन कायदीन ने तमाम मेमन बरादरी को आलमी यौम मेमन की दिली मुबारकबाद पेश की। मैं निज़ामाबाद मेमन जमात की जानिब से और मेमन खिदमत ट्रस्ट की जानिब से, दोनों की जानिब से पूरे निज़ामाबाद के लोगों को, शहर को मेमन डे मुबारकबाद देते हुए और खुसूसन बिलखुसूस हमारे मेमन भाइयों को मुबारकबाद देते हुए उन लोगों से ये अपील करना चाह रहा हूँ जो है गरीब और जो मुस्किन लोग हैं उनकी मदद करे। इस महीने में जो अपने रिश्तेदारों के ख़ास मदद करे। मैं अब तमाम को मेमन डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज का दिन हमारे आज से कई साल पहले ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन का संग बुनियाद डाला गया था, तो उस दिन को आज मेमन डे के नाम से मनाया जाता है। हम हर कौम व मिलत के लिए कुछ भी फलाह व बहबूद का काम करते हैं
तो आज का दिन ये अनाज के पैकेट बनाकर तकसीम गुरबाओं में तकसीम किया जा रहा है। मेमन डे कई सालों से मेमन ब्रदरी की तरफ से मनाया जाता है। इस मेमन डे में हम लोग ख़ास करके निज़ामाबाद मेमन कम्युनिटी तकरीबन 3 साल से गरीब गुरबा में, चाहे वो किसी कौम के भी क्यों ना हो, उनके लिए फूड पैकेट से तकसीम किया जाता है। आज माशाल्लाह से 1100 पैकेट है सो मेमन जमात की तरफ से निज़ामाबाद में जो गरीब गुरबा में तकसीम किया जा रहा है। और इस मुबारक महीने में अल्लाह करीम तमाम मेमन ब्रदरीज में एक जहती और यूनिटी और गरीबों में मदद पहुंचाने का एक जज्बा पैदा करता है। धान की खरीदी के मराकिज का फौरी आगाज किया जाए। पेट्रोल, डीजल और पकवान गैस के अलावा दीगर अशिया की इजाफी कीमतों से दस्तबरदारी इख्तियार की जाए। सिटी कांग्रेस निजामाबाद के कायदीन का मुतालबा। सिटी कांग्रेस की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और मरकजी और रियासती हुकूमतों के अलामती पुतले जलाए गए। सिटी कांग्रेस कमेटी निजामाबाद के सदर केशवेन्यू की क़यादत में ज़बरदस्त एहतजाजी रैली निकाली गई। ये रैली मुख्तलिफ इलाकों से गुजरती हुई धरना चौक NTR चौराहा पहुंची, जहां कांग्रेसी कायदीन ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर आला KCR का अलामती पुतला नजर आतिश किया और मरकजी और रियासती हुकूमतों के खिलाफ ज़बरदस्त नाराबाजी की। इस रैली व एहतजाज में इंचार्ज अर्बन कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, साबिक़ा सदर ज़िला औक़ाफ़ जावेद अकरम, रियासती जनरल सेक्रेटरी अक़लियती सेल कांग्रेस उबैद बिन हमदान, यूथ कांग्रेस जिला सदर विकी यादव, NSUI जिला सदर वेनुराज, SC सेल सदर G प्रभाकर, कॉरपोरेटर गड़गू रोहित के अलावा मलिका बेगम, अबूद बिन हमदान के अलावा दीगर शरीक थे। इस मौके पर सदर सिटी कांग्रेस केशवेन्यू ने कहा कि रियासती व मरकजी हुकूमतें तमाम मुहाज़ों पर नाकाम हो चुकी है और आवाम का जीना दुश्वार हो चुका है। महंगाई ने अपने साबिक़ा तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पेट्रोल, डीजल, पकवान गैस के अलावा दीगर अशियाए ज़रूरियत की कीमतें आसमान को छू रही है और अब गरीब ख़ानदानों में फाकों की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इसी तरह मुल्क भर में किसान मुश्किलात का शिकार है। बिलखुसूस रियासत के किसान अपनी फसलों की फ़रोख्त के लिए तशवीश का शिकार बने हुए हैं। मरकजी और रियासती हुकूमतें धान की खरीदी के मराकिज़ के आगाज़ में लीत व लाल का मुजाहरा कर रही है। केशवेन्यू ने फिलफोर धान की खरीदी के सरकारी मराकिज़ के आगाज़ का मुतालबा किया, बसूरत दीगर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह एहतजाजी प्रोग्रामों में शिरकत करे। उन्होंने कहा कि हम ये एहतजाज अवाम के मफाद में कर रहे हैं, लिहाजा अवाम को भी इन एहतजाजों का हिस्सा बनना चाहिए। ताहिर बिन हमदान ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें ड्रामाबाजी कर रही है और आवाम का भारी नुकसान कर रही है। धान की खरीदी के सरकारी मराकिज़ के क़याम और धान की खरीदी को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां कर रही, लेकिन इस मसले का हल निकालने की कोशिश नहीं करती। किसानों के मफाद में ठोस इक़दामात के बजाय किसानों के इस हसास मसले पर सियासत की जा रही है। उन्होंने मरकजी और रियासती हुकूमतों से मुतालबा किया कि वह फौरी सरकारी धान की खरीदी के मराकिज़ का आगाज़ करे, वरना बसूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमने कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक मुतालिबाती महज़र ऑडियो निज़ामाबाद को पेश किया है और कल से ही ज़िले में सरकारी धान की खरीदी के मराकिज़ का आगाज़ करने का मुतालबा किया है और साथ ही ये भी बताया कि सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी की हिदायत पर रियासत के तमामी हल्क़ाजात असम्बली के मरकज़ पर कांग्रेस एहतजाज मुनज़्ज़म कर रही है। రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు నిజామాబాద్ నగర కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో పెంచిన గ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలకు అలాగే మరియు ఏదైతే MSP రేట్కు ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయకపోవడంలో విఫలమైన కేసీఆర్ సర్కారు మరియు మోడీ సర్కారుకు వ్యతిరేకంగా ఈ ప్రజా ఉద్యమం చేపట్టడం జరిగింది। దీనికి సహకరించిన మా కాంగ్రెస్ శ్రేణులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఖచ్చితంగా రాబోయే రోజుల్లో MSP కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కేసీఆర్ గారికి, మోడీ గారికి ఇద్దరికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము। అలాగే ఏదైతే పెంచిన గ్యాస్, పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు సామాన్య ప్రజల నడ్డి విరిచేలా ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని కూడా అతి త్వరలో తగ్గించే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు చర్య తీసుకోవాలని చెప్పి రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశానుసారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో పెంచినటువంటి గ్యాస్, డీజిల్, పెట్రోల్ ధరలకు నిరసనగా, అదేవిధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం, మోదీ గారి ప్రభుత్వం, అదేవిధంగా రాష్ట్ర కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం
రెండు ప్రభుత్వాలు ఆడుతున్నటువంటి డ్రామాకు తెరదించాలని, మీరు ఆడుతున్నటువంటి డ్రామా వట్టి బూటకమని, ఆ డ్రామా ద్వారా కొనుగోలు కేంద్రాలను వడ్లు మీరు కొనమంటే మీరు కొనమని ఒకరి మీద ఒకరు చెప్పుకోవడం వల్ల ఈరోజు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాందోళనను, రైతుల ఆందోళనను నియోజకవర్గాల వారీగా చేపట్టడం జరిగింది. नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। खुशखबरी, एक अहम तरीन खुशखबरी। शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में एक शानदार लेआउट मंसूरा वेंचर वादी मदीना कसाफत और आलूदगी से पाक पुरफिजा व सेहत बख्श माहौल, बाबनसा पहाड़ी से सिर्फ 2 फरलांग दूर एक शानदार वेंचर जहां आप अपने ख्वाबों का खूबसूरत आशियाना बना सकते हैं। नजात व पेचीदगियों से पाक 125, 250, 800 और 1000 गज के प्लॉट्स पर मुश्तमिल एक काबिल दीद वेंचर वादी मदीना, जहाँ की अहम खुसूसियत 84 फीट चौड़ी मेन सड़क, दरमियान में एक खूबसूरत गार्डन से मस्जिद डिवाइडर, एक और 33 फीट चौड़ी मेन रोड के अलावा 30 फीट चौड़ी सड़कें, मस्जिद, हॉस्पिटल और खूबसूरत प्लेग्राउंड के अलावा वॉकिंग ट्रैक, ओपन जिम और कम्युनिटी हॉल की सहूलत भी मौजूद। एक मुकम्मल वेंचर जो कल एक मुकम्मल और आसूदा हाल कॉलोनी में तब्दील हो जाएगा। बरक़ी खंभों की तंसीब की गई है, जल्दी इन पर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी और मीठे पानी के नलों की सहूलत भी फ्राहम है। तो फिर सोचना किस बात का है। आपके सरमाए का महफूज और सही इस्तेमाल कीजिए और वादी मदीना में प्लॉट्स खरीदिए और अपने अफराद खानदान को एक शानदार तोहफा दीजिए। खास बात यह है कि इस कॉलोनी के अतराफ बाउंड्री वॉल और गेट की सहूलत मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान से सेल फोन नंबर 9849431967 या सोहेल अहमद से सेल फोन नंबर 9866006009 या फिर मोहम्मद अब्दुल मुकीद से सेल फोन नंबर 8328454794 से रब्त पैदा किया जा सकता है। नोट, एक बार इस वेंचर पर जरूर तशरीफ लाए और खुद ही इस वेंचर का मुशाहिदा कीजिए ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। पता याद रखिए, वादी मदीना, असद बाबा नगर रोड, नज़्म महबूब फंक्शन हॉल, रूबरू अरहाम गार्डन फंक्शन हॉल, बाबनसा पहाड़ी, निजामाबाद। और एक खुसूसियत यह है कि इस वेंचर के अतराफ हिफाजती सोलर फेंसिंग लगाई गई है, जिसमें मदाखलत पर हिफाजती अलार्म बज उठते हैं। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जिसके 50 से ज्यादा तालीमी इदारे मुल्क भर में कामयाबी के साथ खिदमत अंजाम दे रहे हैं और शाहीन तालीमी इदारों के तलबा मुख्तलिफ शोबेजात में शानदार खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जिनमें डॉक्टर्स भी शामिल है। इस शाहीन ग्रुप के जूनियर कॉलेज का निजामाबाद में भी आगाज अमल में आ रहा है। शाहीन तालीमी इदारे की खुसूसियत बेहतरीन नताइज के हसूल का मकसद, जिम्मेदार असातिज़ा, ताकतवर व मुनफरिद तालीमी मंसूबा हमारे तालीमी इदारों की नुमाया खुसूसियत है। हर दिन, हर घंटा और हर मिनट तलबा पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है और इसके लिए जामे शेड्यूल मौजूद है। शानदार नताइज का हसूल और तलबा का ताबनाक मुस्तकबिल हमारा सबसे अहम निशाना है। BPC के तलबा को नीट की इंटरमीडिएट साल अव्वल से ही कोचिंग दी जाती है। इसी तरह MPC के तलबा को JEE और IIT की कोचिंग, CEC के तलबा को लॉ सेट,
CA और HCC के तलबा को सर्विसेज और ग्रुप्स इम्तिहानात के लिए कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म कोचिंग की सहूलत भी मौजूद है। इस जामे तालीमी मंसूबे के अब तक शानदार नताइज हासिल हो चुके हैं। अब निजामाबाद में भी शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के मंसूबे पर अमल आवारी होगी। निजामाबाद में गोल्डन जबली हाई स्कूल की इमारत में शाहीन कॉलेज का आइंदा तालीमी साल से आगाज होगा। मजीद तफसीलात के लिए इंतजामिया से रब्त पैदा करे। शाहीन जूनियर कॉलेज, नज़ अबू बकर मस्जिद, बरकतपुरा, किला रोड, निजामाबाद। सेल एंड व्हाट्सएप नंबर 8865404450 पर रब्त पैदा करें। बाएतमाद भरोसेमंद नाम मोहम्मद ज्वेलर्स, खुसूसी पेशकश फी तोला सोने पर 1000 रुपये का भारी डिस्काउंट, जहां आपको जदीद फैशन के तकाज़ों से हम आहंग सोने और चांदी के जेवरात दस्तयाब रहेंगे। ऑर्डर पर बेहतरीन कारीगरों की निगरानी में नफासत से तैयार किए गए जेवरात आपकी खूबसूरती को दोबाला कर दे और आपकी शख्सियत को जाजिब नजर बना दे। ग्राहकों को 22 कैरेट के म्यारी सोने से बने जेवरात इनकी पसंद के जेवरात की शक्ल में फराहम करना हमारा मकसद है। गुज़िश्ता कई सालों से मोहम्मद ज्वेलर्स अपने ग्राहकों की खिदमत का बेदाग रिकॉर्ड रखता है, तो फिर एक बार जरूर तशरीफ लाए और हमें खिदमत का मौका फराहम करे। हमारी एक खुसूसी पेशकश, सोने के जेवरात या सोने की खरीदी पर फी तोला 1000 रुपये का डिस्काउंट दिया जाएगा। मार्केट में चलने वाले जेवरात, चंदनहार, रानीहार, चौकर, नेकलेस या फिर कोई भी जदीद तर्ज के जेवरात की खरीदी और तैयारी के लिए जरूर तशरीफ लाए। मोहम्मद ज्वेलर्स, नज़ बड़ा पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें मोहम्मद पाशा से। सेल फोन नंबर 9848472362। एक अहम व खुसूसी पेशकश, आप हमारे पास 11 महीने तक माहाना 5000 रुपये जमा करें। 12वें महीने के 5000 हम अपनी जानिब से जमा करते हुए 60,000 रुपये का कोई आइटम आपको पेश करेंगे, तो फिर इस्तेफादा कीजिए हमारी इस सुनहरी पेशकश से। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मक़दम। आरमूर के सीनियर सहाफ़ी सैयद जफर अली को हाल ही में फ़ख्र सहाफ़त अवार्ड से सरफराज किया गया था, जिसके बाद आरमूर के सियासी, समाजी, मजहबी व आलमी हलकों में मसरत का इजहार किया गया और कई मुकामात पर इनको तहनीत पेश करते हुए मुबारकबाद दी गई। TRS के कायदीन और मरकजी कमेटी ने भी इनको तहनीत पेश। TRS पार्टी हरकियाती कायद उस्मान अली हज़रमी के मकान पर एक तहनीती तकरीब का एहतमाम किया गया। रोजनामा सियासत आरमूर नुमाइंदा सैयद जफर अली को हैदराबाद में कारनामा हयात फ़ख्र सहाफ़त अवार्ड दिए जाने पर TRS अक़लियती कायदीन सुमेर अहमद और उस्मान अली हज़रमी आरमूर मरकजी कमेटी सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन की जानिब से मुबारकबाद पेश की गई और शालपोशी और गुलपोशी अंजाम देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौके पर अक़लियती कायदीन सुमेर अहमद, उस्मान अली हज़रमी, मरकजी कमेटी सदर मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि आरमूर के सीनियर सहाफ़ी सैयद जफर अली को कारनामा हयात फ़ख्र सहाफ़त अवार्ड हासिल करना काबिल फ़ख्र है और इनकी बेहतरीन खिदमात की सराहना की। आरमूर में उन्हें मुख्तलिफ गोशों से मुबारकबादी का सिलसिला जारी है। बोधन की मस्जिद इब्राहिमा शरबती किनाल में 10 रोजा शबीने का एहतमाम किया गया था। हाफिज सैयद अब्दुल हसीब ने रोजाना 3 पारे सुनाने की सादत हासिल की। शबीने की तकमील के बाद मस्जिद कमेटी व अहलिया ने मोहल्ला की जानिब से हाफिज अब्दुल हसीब की गुलपोशी की गई और तकमील कुरान की सादत पर मुबारकबाद पेश की गई। मस्जिद इब्राहिम शरबती किनाल बोधन में 10 शबी शबीना का इख्तिताम। मुतवल्ली मस्जिद अहमद जरवतुल्लाह खान व इंतजामी कमेटी की निगरानी में हाफिज सैयद अब्दुल हसीब निज़ामी ने चांद रात से रोजाना 3 पारे अपने मुनफरिद अंदाज में सुनाने की सादत हासिल की। हाफिज साहब क़ब्ल रमज़ान मदरसा फेरोज़ अनवर उलूम में 8 घंटे में मुकम्मल कुरान सुनाने की सादत हासिल की। मौलाना मोहम्मद अतीक अहमद निज़ामी ने मुक़ाम कुरान व मुआजिज़ात कुरान पर रोशनी डाली। मौलाना सैयद अब्दुल बाकी क़ादरी निज़ामी ने मुक़ाम मस्जिद और हमारी जिम्मेदारी पर बयान फरमाया। हाफिज काजिम की दुआ पर इख्तिताम हुआ। 4 अप्रैल से 18 अप्रैल CPIM की जानिब से अवामी शोर बेदारी के लिए पद यात्रा का एहतमाम। इस दौरान शहर के हर इलाके में अवाम से रब्त किया जाएगा और मरकजी और रियासती हुकूमतों की मजहूल व नाकाम पॉलिसियों से वाकिफ करवाया जाएगा। CPM जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू का बयान। उन्होंने तशहीरी पोस्टर जारी किया। निजामाबाद CPM पार्टी की जानिब से 14 अप्रैल से 18 अप्रैल तक अवामी शोर बेदारी के लिए पद यात्रा मुहिम चलाई जाएगी। इस सिलसिले में आज CPIM ऑफिस में एक तशहीरी पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई।
इस मौके पर जिला CPM सेक्रेटरी रमेश बाबू ने बताया कि अवाम एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो रहा है, हर शय की कीमतों में भारी इजाफा हो रहा है और साथ ही हुकूमती स्कीमात पर भी अमल आवारी में कोताहियां बरती जा रही है। कई बार अवामी मसाइल को लेकर नुमाइंदगियां की गई, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। बेशुमार अवामी मसाइल जूं के तूं बरकरार है, लिहाजा इन अवामी मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए 14 से 18 अप्रैल अवामी शऊर बेदारी मुहिम चलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि 14 अप्रैल को बाबा दस्तूर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर की यौम पैदाइश के मौके पर इस मुहिम का आगाज़ किया जाएगा और 18 अप्रैल तक पूरे शहर के एक हिस्से में अवामी शऊर बेदारी के लिए घर घर जाकर अवाम से रब्त पैदा किया जाएगा। उन्होंने अवाम से अपील की कि CPIM की इस पदयात्रा का भरपूर ताउन करे और उसकी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इस मौके पर इनके हमरा टाउन CPM सेक्रेटरी मलयाला गोवर्धन के अलावा दीगर मौजूद थे। నిజామాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి అనేక మంది పేదలు అనేక సంవత్సరాలుగా ఇళ్ల స్థలాల కోసం, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల కోసం, పెన్షన్ల కోసం, అట్లాగే ఆ కాలనీలో ఉన్నటువంటి పేదలు వేసుకున్న గుడిసెలకు పట్టాల కోసం, అదేవిధంగా మురికి కాలువల నిర్మాణం కోసం, రోడ్ల నిర్మాణం కోసం, ఇతరత్ర అనేక ప్రజా సమస్యల పరిష్కారం కోసం ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తులు పెట్టుకున్నప్పటికీ, అనేక సార్లు ఆందోళన చేసినప్పటికీ వారి సమస్యలు పరిష్కారం కాకపోవడంతో ప్రజా సమస్యల్ని పరిష్కరించాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో రేపు 14వ తేదీ నుండి అంబేద్కర్ జయంతి రోజు నుండి 18వ తేదీ వరకు నిజామాబాద్ నగరంలో ఉన్నటువంటి గడప గడపకు ప్రజా దర్బార్ పేరుతోటి CPM పార్టీ పాదయాత్రను నిర్వహించాలని నిర్ణయించడం జరిగింది। धान की अदम खरीदी पर किसान माशी मुश्किलात का शिकार, किसानों के पास रखी हजारों रुपए की धान खराब होने का खदशा। किसानों के मफाद में धान की खरीदी के मराकज कायम किए जाए, सीनियर कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी का मुतालबा। उन्होंने बोधन मंडल के मौजे अमदापुर और बेलाल में किसानों से मुलाकात की। बोधन के हरकियाती सीनियर कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने आज बोधन मंडल के मुआज़जात अमदापुर और बेलाल का दौरा किया और वहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की और उनसे फसलों से मुतालिक तफसीलात मालूम की। एक मुकाम पर उन्होंने धान का ज़ख़ीरा देखा जो सड़क के किनारे पड़ा हुआ था। उन्होंने किसानों से दरियाफ्त किया कि इस धान के ज़ख़ीरे की क्या कीमत होगी। किसानों ने बताया कि यह धान 25 से 30 हज़ार रुपये के लगभग का है, लेकिन हुकूमत की जानिब से धान की खरीदी में तसाहुल और इमदादी कीमतों की अदम फराहमी की वजह से ये धान सरेराह पड़ी हुई है और उसके तबाह होने के खदशात मौजूद है। कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फौरी धान की खरीदी के सरकारी मराकज़ का क़याम अमल में लाए और किसानों को खसारे से बचाए। उन्होंने कहा कि किसान समाज की रीढ़ की हड्डी की मानिंद होता है और अगर किसान माशी तबाही का शिकार हो जाता है या उसकी फसल बर्बाद होती है तो उसका असर राज बाजार पर मुरतब होता है और आवाम को महंगाई की सूरत हाल को झेलना पड़ता है और आज पहले से ही महंगाई उरूज पर है। ఈరోజు బోధన్ మండలం అమదాపూర్ బెల్లాల్ ప్రాంతంలో రైతుల కుప్పలు విజిట్ చేయడం జరిగింది। రైతులు చెప్తుంది ఏంటంటే పంటలు సరిగా వండలేదు, ఖర్చేమో మోపడైంది। గతంలో 20-25 వేలు అయితే 30 వేలు ఖర్చు అయింది। మరి రైతు గవర్నమెంట్ వల్ల టీఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కాంట స్టార్ట్ చేయకపోవడం వల్ల బ్రోకర్ల వల్ల దళారులు వచ్చేసి 1320కి మాత్రమే కొంటా ఉన్నారు। మద్దతు ధరనేమో 1900 ఉంది। దీనివల్ల మేము 600 రూపాయలు క్వింటాలకు లాస్ అవుతుందని చెప్పడం జరిగింది। పంట ఎక్కువ వస్తే లాభం ఉంటుంది, పంట కూడా తక్కువ వచ్చింది, అన్ని రకాలుగా నష్టం ఉంది। వాళ్ళ वबाई अमराज की अहम वजह मच्छर होते हैं। मौसम गर्मा में खुले आसमान के नीचे सोने वाले उसका शिकार बनते हैं, लिहाजा बिलखुसूस बच्चों को इन मच्छरों से महफूज रखने के लिए कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने मच्छरदानियों की तकसीम की। कहा कि पूरे बोधन हल्का असेंबली में 20,000 मच्छरदानियों की तकसीम की जाए। बोधन मंडल के मौजे अमदापुर के जिला परिषद हाई स्कूल में सीनियर कायद कैप्टन करुणाकर रेड्डी ने स्कूली तलबा व तालिबात में मच्छरदानों की तकसीम अमल में लाई। उन्होंने कहा कि सालूदा व गंदे माहौल में जरासीम और मच्छरों की कसरत हो चुकी है और मच्छरों से बेशुमार अमराज के फैलने का खदशा लाहक रहता है। मौसम गर्मा में अक्सर लोग ओढ़ कर नहीं सोते, लिहाजा इनके मच्छरों का निशाना बनने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। देही इलाकों में बेशुमार लोग छतों या आंगनों में सोते हैं ताकि गर्म मौसम में राहत की नींद ली जा सके, लेकिन मच्छर इनकी मुश्किल का सबब बन जाते हैं। लिहाजा इन मच्छरों से महफूज रखने के लिए मच्छरदानों की तकसीम का फैसला लिया गया।
करुणाकर रेड्डी ने बताया कि बोधन मंडल के अलावा रेंजर नवीपेट और एड़पल्ली मंडलों के तमाम ही सरकारी प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के तलबा में मच्छरदानियों की तकसीम अमल में लाई जाएगी। जुमला 20,000 से ज़ायद मच्छरदानियों की तकसीम का फैसला लिया गया है। इस मौके पर इनके हमरा एड़पल्ली साबिका MPP भास्कर राजू, साबिका काउंसलर फहीमुद्दीन, ZP स्कूल हेडमास्टर सत्यनारायण, SMC चेयरमैन जगदीश्वर और असातिज़ा व अमला मौजूद था। ఇందాపూర్ స్కూల్లో ఈరోజు అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్లో దగ్గర 500 దోమతెరలు పిల్లలకి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదే విధంగా బోధన్ మండలంలో ఎన్ని స్కూళ్ళు అయితే ఉన్నాయో ప్రైమరీ స్కూళ్ళు కానీ అప్పర్ ప్రైమరీ స్కూల్ కానీ అన్ని స్కూల్లో కూడా పిల్లలకు ఇవ్వడానికి కన్నడ యువసేన ద్వారా కన్నడ మిత్రమండలి ద్వారా ఈ సేవా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం. గతంలో రెంజల్, ఎడపల్లి మరియు నవిపేట్ గ్రామంలో ఉన్న పిల్లలందరికీ కూడా దగ్గర 20,000 దోమతెరలు ఇవ్వడం జరిగింది. इख्तिताम से खबर हेडलाइन। मुसलमान को खैरात नहीं हक दिया जाए, कांग्रेस अक़लियती कायदीन का बयान। उन्होंने सवाल उठाया कि 12% तहफ़्फ़ुज़ात का क्या हुआ। सरकारी इफ्तार पार्टी और खैराती कपड़े नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात चाहिए, अक़लियती कांग्रेस कायदीन का बयान। जिला कमिश्नरेट की हुदूद में पुलिस की कारकर्दगी को मजीद मौसर बनाया जाए, ज़ेर इल्तवा केसों की जल्द एक्सवी की जाए, जराइम की रोकथाम के इक़दाम लाजमी है। कमिश्नर पुलिस की निगरानी में जायजा इजलास। आलमी यौम मेमन के मौके पर निजामाबाद मेमन जमात की जानिब से गरीबों में खाने की तक़सीम। मेमन कायदीन ने बताया कि आज के ही दिन आलमी सतह पर मेमन फेडरेशन का क़याम अमल में लाया गया था। अवामी शौर बेदारी के लिए CPIM की जानिब से 14 से 18 अप्रैल घर घर शौर बेदारी मुहिम। अवामी मसाइल पर आवाज उठाई जाएगी और अवाम में एहतजाज का शौर बेदार किया जाएगा, CPM कायदीन का बयान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।